So now it's time for the journey behind the Jersey talk show. I know you all are very excited to ask questions, but हम उससे पहले आप लोगों के common questions हमारे एथलीट से पूछेंगे. So I would like to invite on stage the retired squadron leader Divya Bajpai, co-founder of One Dice. Everyone, please give it up for her. She will lead this inspiring conversation within to you all. Thank you so much, Divya ma'am. The mic is all yours. How are you feeling, everybody? So, 19th November 2023 का दर्द याद है? I am sure. एनिवर्सरी थी 2nd November 2025 का मरण भी याद है। वो सब लोग जो ये बोलते थे कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, इनका गेम देखने में वो मजा नहीं आता। We as a country stand as world champion all because of our women cricket team. And a huge round of applause for each of these champions sitting right here in front of us. So before we go ahead, I would like to brief you about this small event that we have conducted. So Fantastic is basically the first ever fan meet event that we have conducted, breaking the barriers between the LED screens and our champions. You, all of you. So all of you must have just heard their voices, must have seen them on the screen. And this is the first time you're seeing them alive. Yes, they are alive. ये सब जिंदा लोग हैं, ये सिर्फ स्क्रीन पे नहीं दिखते। इनको कैसा फील होता होगा, ये क्या सोचते होंगे, फील्ड पे इनको चोट लगती है क्या जब ये गिरते हैं? All these questions will be answered today, right in front of you as we speak. So I, as coordinator Divya, will host a talk show with all of our champions sitting right here in front of us on your behalf. So it will come as a surprise. आप में से किसी से भी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है. Please be ready. I know you people are very good on field, but यहाँ पे हमारे लिए सरप्राइज होगा. Like you get surprises when a snake is there and you're not ready for it, but फिर भी आप वो कैच पकड़ते हैं. So that is how it is. Well, the athlete is always ready. I am sure Rana ji at her best, like always. So, राणा जी माफ नहीं करें. So without much ado, मैं सबसे पहले मेघना सिंह से शुरू करना चाहूँगी. I would request you to please hand over the mic to Meghna, please. So Meghna, आप कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फैमिली मेंबर या कोई भी ऐसे इंसान का को नेम कर सकते हैं जिन्होंने आपको तब सपोर्ट किया हो जब आप खुद को भी सपोर्ट ना कर पा रहे हो या आपको किसी और ने सपोर्ट ना किया हो? स्टार्टिंग में पापा एंड बीच में एक फेज ऐसा आया था जब आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो वो एग्जांपल ये बैठी. उसने वो टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट किया और एक बूस्ट किया कि आपका टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टाइम आपको बनाना है. सो उस फेज से नीचे जाने के बाद जब आपका ऊपर वाला फेज आता है ना, उसमें आप जो कर रहे हो वो सबसे मेन आपकी मेहनत दिखती है. बिल्कुल. माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा ऑफ करेंगे प्लीज. So next is our, for those who don't know, let me introduce you another world champion who's sitting in front of us. That is Vaishnavi Sharma, our under-19 World Cup winner. तो जनवरी 2025 में हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर के आई थी. She was the highest wicket taker in that championship for the world. So Vaishnavi, आपको कैसा लगा? How did you feel when you finally touched that World Cup trophy? Did you ever think कि उस मुकाम तक हम पहुंच जाएंगे या you will be able to touch that? How did you feel?
जब उस समय हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थे और ट्रॉफी हाथ में आई, तब तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, बस ये था कि भाई कब से इसका सपना देख रहा था और अब ये फाइनली आ गया। उसके लिए मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किया था कि मैनिफेस्टेशन किया था उसके लिए कि मैं फाइनली वर्ल्ड कप खेलूँगी, इस टीम का हिस्सा बनूंगी, वो नेशनल एंथम में खड़ी होंगी। मैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए मेन था कि मैं नेशनल एंथम में खड़ी होंगी। फिर जब फाइनल में जब टीम वर्ल्ड कप उठा रही होगी तो मुझे फील करना वो कैसा रहता है देश के लिए जीतना, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था। मेहनत सफल दिख रही थी कि ये इसके लिए बहुत मेहनत की थी और फाइनली कामयाब हुई। आई एम श्योर वो मोमेंट हम सबके लिए उतना ही प्राउड मोमेंट था जितना आपके लिए था। सो अनदर वर्ल्ड चैंपियन विद अस, स्नेह राणा। So Rana ji, people have known you as a resilient, calm, yet very headstrong girl. What is Sneh Rana when there's nobody around? Well, yes, everybody has seen me as a comeback queen, as a fighter, or as a strong woman. But nobody knows the struggle behind it. What I have been through, what I have done to get myself there. And I think जब मैं अकेले रूम में होती हूँ तो या तो मैं सो रही होती हूँ ऐसे मुझे नींद बहुत कम आती है, बट या ऑन द अदर हैंड या तो मैं जैसा कि अभी वैष्णवी ने मेंशन किया, मैनिफेस्टेशन एक शब्द उसने बोला, तो या तो मैं मैनिफेस्ट कर रही होती हूँ कुछ चीज़ें, या मैं मेडिटेट कर रही होती हूँ, या मैं अपने आप को खुद ही अपने चैलेंजेस से बाहर निकाल रही होती हूँ, कि या मैं अपने कुछ दोस्तों से बात कर रही होती हूँ कि अगर मैं कहीं डाउनफॉल हुआ मेरा तो मैं वहाँ से कैसे निकल सकती हूँ। तो मैं अपने आप में ही बहुत उलझी रहती हूँ कि मैं उसको अपने आप को कैसे निकालूँ उस चीज़ से बाहर, और उसमें बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी। जब एक एथलीट अकेले बैठता है ना रूम में तो उसके दिमाग में 100 चीज़ें चलती हैं कि अगला उसको क्या करना है, अगर उसने ये चीज़ ख़राब कर दी तो वो कैसे ठीक करना है, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पर्सनली उसको कैसे डील करना है, उसके घर में कई चीज़ें चल रही होती है वो कैसे डील करना है, पब्लिक को कैसे फेस करना है। आप लोग इतना प्यार देते हो लेकिन प्यार के साथ साथ कभी कभी क्रिटिसिज्म भी आता है, तो उस चीज़ को कैसे लेना है, कैसे हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ चलता है एक एथलीट के दिमाग में। तो वहाँ से उठना आई थिंक उस समय में मैं अपने दोस्तों से या अपने आप अकेले बात करती हूँ, खुद से बात करती हूँ, या सबसे बड़ा हीलर होता है म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ, तो ये मेरा फंडा है, आराम से कामली बैठो और म्यूज़िक सुनो। Don't you athletes Netflix and chill? We do, but alone. Genuine question, yeah. We definitely do. मैंने अभी हाल ही में डेली क्राइम आया है, अभी लेटेस्ट नेटफ्लिक्स में मैंने कल ही खत्म किया है। So you are updated. I am very updated. Good to know this part of our athletes. तनुजा, आपकी स्पोर्टिंग जर्नी में या आपकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री में ऐसा कोई व्हाट वुड यू डिफाइन जो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से आपको लगा कि ये दिस इज द थिंग कि यहाँ से अब मेरी लाइफ चेंज हो सकती है? आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट WPL रहा है, क्योंकि वहीं से ही जो भी डोमेस्टिक के प्लेयर थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हाई स्टेज पे परफॉर्म करने की। आई थिंक WPL सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, स्पेशली इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। Great. She is one of the finest left arm spinner we have in our country right now. Prema, you have been a sensation by being one of the costliest player in the auctions in WPL who's uncapped. She has been one of the costliest uncapped player in WPL, by the way. And which better franchisee than RCB? So take us through the emotion. जब आपको पहली बार पता चला, जब आपने देखा कि बिड बढ़ती जा रही है, I'm sure auction सब बहुत curiously देखते हैं. So what was that emotion? कैसा था? घर पे सबसे पहले आपने किसको कॉल किया?
या घर पे ही थे, कैसा था वो फीलिंग? ऐसा लाइक उस समय हम लोग अपना डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे थे सीनियर के, सो मेरी रूममेट मेरे साथ ही थी, तो सडनली मेरा नाम आया, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 lakhs होगा मैक्स टू मैक्स, बट देन दिल्ली कैपिटल्स आया, वो वहाँ से उठा रहा है, वहाँ से उठा उधर 50 lakh क्रॉस हुआ। देन मेरे को हुआ कि क्या हो गया ये, ऐसा हो नहीं सकता है। तो 50 lakh, 70 lakh, 80 lakh, जो 1 करोड़ गया। अब 1 करोड़ कभी देखे नहीं हमने, तो नहीं ले गई सरकार, ले गई 40 लाख ले गई ना। नजर क्या, एक नजर गलत जगह है, नजर गेम पे सरकार नहीं भी तो है। है ना। तो उसके बाद फिर देन आई सबसे पहले मैंने पापा को ही कॉल किया। पापा का रिएक्शन यही था, ये तुझे मिलेंगे। आई वाज लाइक That's a कि genuine ये तुझे question. मिलेंगे पैसे की, मतलब ऐसा ही है, क्योंकि पापा ने भी कभी ऐसा देखा नहीं है हमारे फैमिली में, इतना है कि ये क्या है, मतलब ऐसा। तो काफी खुश थे, इवन मम्मी एंड पापा, दादा दादी सब खुश थे। बट एक बहुत ही फनी किस्सा, मुझे जब मैं गांव गई मुझे पता लगा कि मेरे जो बुआ है, जब उन्हें बताया कि मैं 1.20 CR में लाइक सेल हुई RCB में, तो वो रोने लग गई, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे को बेच रहे हैं। तो लाइक पूरे गांव में वो उन्होंने लाइक रोना कर दिया कि मेरी बेटी को वापस लाओ, वो 1 करोड़ नहीं चाहिए हमें, हमें वो चाहिए। देन गांव वालों ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो खेल रही है, वो उन्होंने अपनी तरफ से खेलने के लिए उसको पैसे दे रहे हैं। देन वो थोड़ा शांत हुई कि हाँ ठीक है ठीक है। देन पूरे गांव में पता चला, तो ठीक है गांव अच्छे है, लाइक मेरा पूरा गांव सपोर्टिंग है। सो अच्छा था, काफी अच्छा माहौल था, इवन फ्रेंड्स फैमिली सब लोग, मेरे दोस्त भी वैसे ही विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो कह रहे कि एक अमीर दोस्त तो आया, मैंने कहा ठीक है भाई चलो भाई। बट अपार्ट फ्रॉम जो काफी अच्छा लगा, जब RCB में गई तो सबसे पहले स्मृति दी, क्वीन ऑफ क्रिकेट उधर ही है, जितना एलिस पेरी है, जितना मैं उन लोगों से सीख पाऊंगी, जितना एक्सपीरियंस ले पाऊंगी और जितना मैंने लिया, वो मेरे लिए थ्रू आउट द जर्नी बहुत लाइक बहुत इंस्पिरेशन था। क्योंकि जब मैं इंडिया ही के लिए खेली तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पे यूज़ करी कि मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग रह सकते हो, इवन आपका सिचुएशन जैसा भी हो, बट आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट जो मेन होता है, वो आप कितना उसको फोकस करते हो, उसका सो वो एक चीज़ थी जो मेरे को बहुत हेल्प हुई ड्यूरिंग RCB। भले ही मेरा कैसा भी हो, मैच कैसा भी गया हो, बट वो बहुत हेल्प हुआ मेरे को। I am sure. Every day is a learning, and with players like Smriti, Ellis Perry, Sneh Rana in RCB, you will definitely learn so much. सॉरी दीदी। So this is the raw emotions that you people were missing, that you are seeing live. So Vaishnavi, coming back to you. Okay, so another. So somehow Vaishnavi is just. I'm telling you, mark my words, people. She's going to be the sensation of the country. This girl sitting right in front of you, and this year's अभी इस साल के domestic championships शुरू भी नहीं हुए हैं ढंग से, just one series, and this girl was highest wicket taker in the senior T20 championship that happened. She holds the record that equals the record of Sneh Rana from our country taking 8 wickets in a multi-day or a test. She has done that in domestic and with better numbers. By the way, better than her. Every match and every series that she has played, she has been humongously beautiful in bowling, and she has just been the best that can be on field when it comes to bowling. So, घर वालों को कैसा फील होता है जब आप वर्ल्ड कप लेकर के आए? हाउ वाज योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, हाउ वर दे फीलिंग, व्हाट वाज देयर इमोशन, हाउ डू दे ट्रीट यू नाउ? आर यू स्टिल द किड इन द हाउस, और डू दे गिव यू दैट ठीक है बड़े हो गए हो अब मान लिया, समथिंग लाइक दैट? कुछ नहीं, अभी भी डांट खाती हूँ। बॉलिंग अगर कल की मैच में विकेट नहीं मिलेगा तो बोलेंगे बेटा क्या कर रही हो, विकेट कब लोगी तुम? तो सेम वैसे ही अब जैसे पहले ट्रीट करते थे वैसे ही। बट जब वर्ल्ड कप के बाद मैं वापस घर पे आई तो बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे को ऐसा करा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा करा, अभी ठीक है हो गया, आगे के लिए करो।
आखिर से ये बोल दिया उन्होंने मेरे को। ये हमारे घर वाले सेटिस्फाई क्यों नहीं होते हमारी सक्सेस से? कहानी घर घर की। हाँ, कहानी कर कर। So, Meghna, you are known as the banana swinger of the country. The swing that you have created, the kind of swing that you have, the way you bowl. कितना समय लगा वो उसको उस परफेक्शन के लेवल पर लाने के लिए, उस तरीके की बॉलिंग को बार बार मतलब एक आम इंसान अगर जानना चाहे तो उसको कितना समय लगेगा उस लेवल की परफेक्शन या उस तरह की बॉलिंग को सीखने के लिए? आपको कितना समय लगा? इसके पीछे एक स्टोरी है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेडियम ज्वाइन किया था तो मैंने वहाँ पर ऑफ स्पिन बॉल डाला था कोच सर के सामने। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बॉल तू मेरे को भाग के दिखा के डाल। तो जैसे ही मैंने वो एक ही बॉल डाला वो दिन, उस दिन उन्होंने मुझे एक ही वर्ड बोला कि आज से तू यही डालेगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा यार थक के बॉल क्यों डालना है क्योंकि उस टाइम तो इतना पता नहीं था कि हम कहाँ मतलब क्या है, इतना आगे स्कोप है नहीं है, बस हमें तो बस एंटरटेनमेंट के लिए खेलना था। तो उन्होंने बोला नहीं अभी यही डालेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे नहीं पता उन्होंने उस टाइम क्या देखा क्या नहीं देखा। बनाना स्विंग जो फेमस हुआ है वो मतलब 2021 के बाद फेमस हुआ है। उससे पहले मुझे ऐसा नहीं पता था कि बनाना स्विंग के नाम से भी फेमस हो सकता है कोई। तो बेसिकली ये कि उसको परफेक्शन लाने के लिए ऑनेस्टली वो थोड़ा नेचुरल भी था, और एकदम परफेक्शन के लिए आपको डे बाय डे उस पर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपका, क्योंकि सबसे टफ होता है आई थिंक आउट स्विंग के लिए एक लाइन लेंथ पकड़ना, क्योंकि जहाँ उसने थोड़ा भी लेंथ गड़बड़ किया वो मार खाएगा। तो ये इसके लिए थोड़ा परफेक्शन के लिए आपको डे बाय डे आपको उस पर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अराउंड 4 से 5 साल लगा उसको परफेक्शन के लिए, बट ऑनेस्टली वो थोड़ा नेचुरल भी है। Just being humble, 4 से 5 साल is the least amount of मेहनत for one kind of ball. So imagine how much effort you genuinely need to become what Meghna Singh is right now. So Sneh, please tell us about one moment when you nearly walked out of the sport. Is there any? See, the beauty of the athlete is that कि they don't walk away. कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक एथलीट ऐसा इंसान है वो खड़ा रहेगा, कुछ भी हो, वो कभी भी वहाँ से जाएगा नहीं। कोई भी चैलेंजेस फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे माइंड में कभी ऐसा आया कि मैं गिव अप कर दूँ या उस चीज़ को छोड़ के चले जाऊँ। तो शायद वो पहले से घर से भी ये चीज़ें आती हैं आपकी कि आप कितना मन लगा के काम कर रहे हो या आप कितना एफर्ट्स दे सकते हो उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे मॉम डैड भी ऐसे ही मेहनती थे, और डैड थे एंड मम्मा अभी भी उतनी ही मेहनती हैं और वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो शायद वो क्वालिटी वहाँ से मुझे मिली है। और द बेस्ट थिंग इज कि मेरे माइंड में कभी आता ही नहीं है कि मैं वॉक ऑफ कर जाऊँ। दैट्स वाई मे बी मुझे कम बैक क्वीन का टैग भी मिला है, इसीलिए मिला है शायद कि मैं वॉक ऑफ करने से ज़्यादा मैं उसका सामना करने की ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि जब तक आप लड़ोगे नहीं आपको पता कैसे चलेगा कि आप वो चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यही है मेरी कहानी, और मैंने अपनी कहानी अपने शरीर पे भी छपवाई हुई है, और सबको आई थिंक पता ही होगा कि मेरे हाथ पे भी विद्रोही छपा है। yes. तो आई डोंट वॉक, आई जस्ट गो, एंड मैं अपने आप से compete करती हूँ। द बेस्ट थिंग इज कि अपने आप से compete करो, डोंट सी कि आपके आगे पीछे लोग क्या कर रहे हैं। compete with yourself, see every day in the mirror and just compete with yourself. So वो कहते हैं ना कि जिद्दी है विद्रोही मन मेरा, बस सोचता है चल देता है। So people, that is the comeback queen's comeback mantra for everybody. Just don't give up. That's it. Just very simple. Just don't give up. So
तनुजा, you have been an integral part of the team. मतलब जब टीम के साथ आपने इस साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या और भी सीरीजेस में you have remained the integral part of the team. जब टीम ने वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती तो आपने अपने आसपास कुछ लोगों के नज़रिए में, रवैये में, बातचीत करने के तरीके में या आसपास के लोगों में कुछ चेंजेस देखे, खुशी, गम कि ये क्यों जीत गए यार या वाओ हम फाइनली जीत गए? मतलब क्या था, आपके आसपास का माहौल कैसा था? आई थिंक डेफिनेटली गम तो बिल्कुल भी नहीं देखा। मैं जितने भी लोगों से उसके बाद मिली हूँ, आई थिंक सब ने वुमेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था, पहले भी सपोर्ट कर रहे थे, बट जो वर्ल्ड कप है उसके बाद इतना घर के हर एक बच्चे को आई थिंक हर एक क्रिकेटर के बारे में पता होगा। आई थिंक जो वर्ल्ड कप से पहले आई थिंक उतना नहीं पता था। आई एम श्योर। और एक चीज मैं ये भी बोलूँगी कि अब जैसे पहले होता था कि मैं अपने बेटे को विराट कोहली बनाऊंगा, बट आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद आई थिंक ये होगा कि ओके मैं अपनी बेटी को स्मृति राणा बनाऊंगी या फिर स्मृति मंदाना बनाऊंगी। तनुजा के अंदर भी बड़ा बनाएंगे। चेंज है। Good to know. Actually, I am so happy and elated to know that people are genuinely wanting their girls to come up and they have role models जो शायद पहले थे पर लोगों को पता नहीं थे, और शायद यही हमारा मोटिव है इन सब लोगों को आपके सामने लेके आना और उन बच्चों को ये बताना कि आपके पास आपके रोल मॉडल्स आपके सामने बैठे हैं, आप ये हो सकते हो अपने फ्यूचर में। प्रेमा, भागेश्वर से इंडिया के वर्ल्ड कप टीम के रिजर्व स्क्वाड तक का सफर, ये कैसा था? माहौल कैसा था? आपको कैसा लगा कि जब आप वो टीम जो आज वर्ल्ड कप जीत गई है, आपने पूरा टाइम उनके साथ प्रैक्टिस किया है, यू हैव हैड द कंप्लीट प्लेजर ऑफ बीइंग एंड लर्निंग द एंटायर ट्रेनिंग विद देम, हाउ वाज द फीलिंग? कैसा लगा आपको? मतलब एंड व्हाट, जस्ट टॉक अस थ्रू दैट। स्टार्टिंग में मेरे को क्रिकेट का शौक है, बट स्टार्टिंग में मैं जैसे गांव में रही हूँ 5th-6th क्लास तक, तो वहाँ पे इतना हम लोगों को प्रमोट करते नहीं थे एट दैट टाइम कि लड़कियाँ खेलने जाती है। बट एक जो मेरे दादू थे कि तू जा, लोग जो कहेंगे देखे जाएंगे, तू जा, तो मैं उनके भरोसे ही जाती थी। दादू मैं शाम को आऊँगी, आप देख लेना, मम्मी पापा दादी जो करेंगे मैं उनके पीछे छुप जाती थी। बट बाद में हम लोग लेटर ऑन बरेली शिफ्ट हो गए, सो मेरे को ऐसा पता नहीं था कि क्रिकेट ओपनली होता है, स्टेट ट्रायल्स होते हैं, बट मेरे को खेलने का शौक था, तो मैं हॉकी में गई। फिर देन हॉकी में मैंने जूनियर इंडिया रिप्रेजेंट करा। देन उसके बाद अकल आई कि फिर वहाँ पे पता चला नहीं, ये थोड़ा गलत ट्रैक पे आ गए, क्रिकेट पे आ जाते हैं। देन फिर मैंने कॉल किया, आई थिंक बागेश्वर में मैंने हमारे एसोसिएशन में कॉल की, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर बताया कि आपको यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपको देन स्टेट के लिए ट्रायल देने पड़ेंगे, तब खेलना पड़ेगा। तब जाके मैं स्टेट के लिए खेली। वहाँ पे भी ऐसा ही था कि 2 साल में फील्डिंग के उससे थी, बट मुझे एक बहुत अच्छी लाइन लगी आई थिंक कि सबसे मुश्किल चीज़ है सबसे सिंपल चीज़ करना है। आप हर रोज़ दाल चावल नहीं खा सकते हो, तो वो चीज़ मैंने कहीं ना कहीं ऐसे लिया कि हाँ अभी हर रोज जाऊंगी प्रैक्टिस। पहले मैं नहीं करती थी प्रैक्टिस, मेरे को ठीक है खेल लूँगी, हो गया यार बस। बट अभी जब आरसीबी ने मेरे को 1.2 इतना लिया, देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जिम भी जाना चाहिए, मुझे रनिंग करनी चाहिए, मुझे अपना डाइट देखना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद मुझे भी अपने ऊपर एक चेंज आया कि हाँ यार ये हो रहा है, तो बस मैं उसी को फॉलो करती रही। एंड देन जब फिर मेरे को इंडिया स्क्वाड के लिए, रिजर्व के लिए कॉल आया, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उसके बाद वाइजैक में आई थिंक एक कैंप था जहाँ पे द होल इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप स्क्वाड था वो था, तो वहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक स्मृति दी, स्नेहा दी, हरमन दी, कोच थे वहाँ पे इंडियन टीम के, तो जो उतना अपना वो एक्सपीरियंस जो मुझे शेयर कर सकते थे उतना मैं ले पाई। एंड उसको मैं थ्रू आउट माई जर्नी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने बहुत फॉलो किया उसको, सो मुझे बहुत हेल्प हुआ है वो। So nothing comes easy and everyday practice is important. दाल चावल रोज खाना जरूरी है।
खाने से याद आया, मेघना, व्हाट इज जस्ट पूछने का जवाब दे दो, कुछ नहीं। कुछ तो गिल्टी प्लेजर होगा कि आज अगर मैं ये चैंपियनशिप जीती तो मैं आज एक पिज्जा तो पूरा खत्म करूंगी ही करूंगी, या एक पेस्ट्री तो खत्म करूँ, कोई गिल्टी प्लेजर ऐसा कि आज ये वाली चीज तो खानी है। उसके लिए वो चीज़ पसंद भी तो होना चाहिए। टिपिकल दाल चावल गर्ल। Okay, so before we close this conversation, one last question with you, Sneh. Just since you are the most freshly baked World Cup champion, so how was the welcome at home? How did it feel? मम्मी को कैसा लगा? What did you see in her eyes? Was the reaction different? Generally, as you say, they are very non-reactive types. What was the entire feel of it? How did you feel? And just take us through that. So when we lifted that trophy, तो जनरली क्या होता है कि मॉम डैड मतलब मम्मा और घर में जितने भी लोग हैं वो मैच खत्म होने के बाद टीवी बंद कर देते हैं। अब मुझे लगता है बहुत सारे घरों में ऐसे ही होता होगा, प्रेजेंटेशन तक कोई देखता नहीं है। तो बट उस दिन उन लोगों ने सारी प्रेजेंटेशन देखी एंड दे कॉल्ड मी एट 2 AM और उस टाइम हम ग्राउंड में ही थे। तो वो जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में जो एक बोलते हैं ना वो उत्साह था और वो जो प्राउड वाली चीज़ थी जो मैं सुन रही थी, मेरी सिस्टर और मम्मा ने मुझे कॉल किया था, तो वो सुन के मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि फाइनली वी हैव डन समथिंग। क्योंकि उस टाइम हम लोग सब नम थे, हमें फील ही नहीं हो रहा था कि हमने ट्रॉफी लिफ्ट कर दी है, तो वी वर इन दैट सिचुएशन। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया तो दे वर वेटिंग कि मैं कब घर जाऊं, बट मुझे टाइम नहीं मिला और हम लोगों ने 2 तारीख को ट्रॉफी उठाई और मैं 8 तारीख को घर जा पाई उसके बाद। एंड जैसे ही मैं घर पहुंची बहुत अनएक्सपेक्टेड था, इतने लोग आए थे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने लार्ज नंबर्स में वो लोग आएंगे। एंड वो मेरी सिर्फ फैमिली के लोग थे, मतलब one of the family was Meghna Singh also, by the way. I was about to come. मेघना ने हालांकि मुझे वहाँ सरप्राइज दिया था आके, और इतने लोग थे कि आप ये समझ लीजिए आधा देहरादून वहाँ पर आ गया था। एंड वो सिर्फ मेरी फैमिली वाले लोग थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग विमेंस क्रिकेट को इतना जानते भी नहीं थे, कभी जिन्होंने इतने मैचेस देखे भी नहीं थे, वो लोग वहाँ पर आए थे मेरे स्वागत के लिए। एंड जब मैं घर पहुँच नहीं, सर ने तो सबसे पहले ही स्वागत कर दिया था दिल्ली में जब हम पीएम सर से मिलने जा रहे थे, तो सर वाज द वन जिनसे मैं सबसे पहले मिली थी दिल्ली में आके। और बाय द वे सर विमेंस क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनके सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है विमेंस क्रिकेट में, तो थैंक यू सर। और उसके बाद जब मैं घर गई तो घर पे मैं देख रही हूँ कि और भी ज़्यादा लोग वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे। तो ऐसा था जैसे शादी में एक माहौल होता है ना, और कहीं कहीं से लोग आते जिनको आप जानते भी नहीं हो तो दे वर लाइक दैट। और बट बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी वो फीलिंग आई नहीं है पूरी तरह से, अभी तक मैं अभी भी नम हूँ। लेकिन जब मैं इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ और जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ लोगों की जो शायद उस दिन स्टेडियम में भी आए होंगे या जो लोग अपने घर से देख रहे थे, तो मैं आज इमोशनल होती हूँ वो वीडियोस देख के कि हर घर में हर एक इंसान विमेंस क्रिकेट के लिए चीयर कर रहा था उस दिन। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जो मेल क्रिकेटर्स होते हैं ना, या जो लोगों को पता ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं विमेंस क्रिकेट, वो लोग चेयर अप कर रहे थे हमारे लिए। एंड स्टेडियम में भी आके जो लोग चेयर कर रहे थे, और एक बकेट हेड नाम का एक ग्रुप है वो भी आया था चेयर अप करने के लिए। एंड दे वर सो अमेजिंग, वो लोग चैंट्स कर रहे थे, वो कुछ अपनी राइम्स बना के आए थे। तो वो देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि विमेंस क्रिकेट कहाँ शुरू हुआ था और आज कहाँ पहुँच गया है। एंड आई एम होपफुल कि इस ट्रॉफी लिफ्ट करने के बाद वो और ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुँचे। और जो आप लोग आज बैठे हो, सामने बैठे हो,
आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिले और आपकी जनरेशन आने वाले टाइम पे और भी ऊपर ले जाए वुमेन्स क्रिकेट को। Thank you so much, Sneh, Vaishnavi, Tanuja, Meghna, Prema. Thank you everybody for giving us your time, sharing your stories with us, and for all of you. ये जो आप रूबरू हुए हो इन लोगों से, ये मौका आपको दोबारा मिले या ना मिले, पर आज जो मौका यहाँ से मिला है, इसकी लर्निंग को अपने साथ ले करके जाइएगा. प्लीज प्रैक्टिस if you want to become a cricketer or a player or a lawyer or anything. Just do not stop at this place. Keep working hard and keep achieving. That's you. And these are for you. Thank you so much. Shyam Sundar sir would like to address something, sir. कुछ नहीं, मैं दिव्या यही कहना चाहता हूँ कि कुछ काफ़ी यंग लड़के लड़कियां हैं या क्रिकेटर होंगे, उनमें से शायद किसी को कुछ पूछना हो इन चैंपियंस को। बिल्कुल सर, We would love you. We have Nalini ma'am from our team with the mic in the audience. If you guys have any questions, feel free to ask. Please raise your hands and the mic will come to you one by one. So we already have a volunteer. Yes, we already have. हेलो, मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी से कि इंडियन वुमेन क्रिकेट में ऐसा कौन सा बदलाव जो आप सभी को इंस्पायर करता है, और ये सबके लिए डिफरेंट आंसर हो सकता है इसका। सबसे बड़ा बदलाव तो हर घर में यही है कि अब सब ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां क्रिकेट में आए और उनकी थिंकिंग चेंज हो गई है कि क्रिकेट को भी आप करियर चूज कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो जय शाह सर ने पे पैरिटी इक्वल करी है, उससे काफ़ी मेहनत मतलब उससे काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है और लोगों के माइंड क्लियर हो गए हैं कि आप इसको एज अ करियर चूज कर सकते हो। Well said. Can we have the next question? Anyone? We have young children. Okay, I will request those who are asking questions to please put your name forward. Yeah. अपना नाम भी बताइए ताकि उन्हें भी पता चले आप कौन हैं. Please. Hello, it's Manyata, and firstly I want to say that Nadi, I'm just blank. Literally, I'm so happy to see you all, and still I'm not. It's like I'm breathing. Literally, I just want to. Could you please give me an autograph and thank you. Oh my God. What a great inspiration. First, would you please give me your autograph? I will get it first. You all, and I just wanted to ask. I'm just trembling. It's okay. I just want to ask you that how to deal with your failures. What's your age? 17. 17. Have you seen any failure yet? स्टिल बट होता है ना मैच, मतलब प्रैक्टिस के वक्त मतलब सही नहीं जाता है डेज, तो ऐसे होता है काफ़ी टाइम। बट फॉर फ्यूचर के लिए तो आप जितना नीचे गिरोगे उतना ऊपर जाओगे। जैसे आपने बचपन में एक गेम खेला होगा, आई एम श्योर बहुत लोगों ने खेला होगा, वो रबर बैंड खींचने वाला। हम लोगों को मारते थे क्लासरूम्स में, बहुत सारे लोगों ने खेला होगा। तो रबर बैंड को आप जितना पीछे खींचोगे ना तो उतना आगे भेजेगा अपने टारगेट के पास। तो जितना नीचे गिरोगे उतना ऊपर जाओगे। तो फेलियर से कभी नहीं डरना है, ठीक है। फेल कब हो रहे हो? जब आप कुछ ट्राई कर रहे हो, है ना। कुछ ट्राई करने के बाद अगर फेल हो रहे हो तो वो जीत होती है, वो एक लर्निंग होती है। फेल Well said. thank you so much. Anyone? Yeah, we also have one more young girl in the team. Thank you. Can I also get an autograph? And that's my first one. You will get an autograph. That's- We have a family planned. My question to स्नेह राणा मैम, अकॉर्डिंग टू मी एक एथलीट के लाइफ में सबसे खराब फेस वो होता है जब वो किसी टीम में सेलेक्ट हो गया हो और उसके बाद उसे इंजरी हो जाती है। आप 2-3 साल से मेहनत कर रहे हो और उसके बाद 2 मिनट में कुछ हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट या कुछ भी, और वो पूरे टूर्नामेंट से आप बाहर हो गए, आपकी जगह कोई और आया और उसने अच्छा कर लिया। वो उसके बाद बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों हुआ ऐसा।
आप एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से मेहनत करी और मेरी जगह कोई और आया और वो लेके चला गया। ये डिजर्व, ये एक क्वेश्चन आता है ना कि माइंड में मैं डिजर्व करता भी था या नहीं, या फिर कुछ और। ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बाद में। और जब मैंने इंडियन टीम का स्क्वाड देखा तो मेरे फेवरेट प्लेयर शेफाली वर्मा मैम वो उस टीम में नहीं थी। और आफ्टर द सम टाइम मुझे लगता था कि वो उन्हें होना चाहिए, बट प्रतिका रावत मैम ने बहुत अच्छा करा। बट जब वो वापस आई तो मैं थोड़ा खुश भी था और थोड़ा उनके लिए सैड भी था कि उनके लिए तो ये बहुत बुरा हुआ और उनको एक चांस मिला। बट मुझे ये भी देखने को मिला कि मतलब मेरी फेवरेट प्लेयर वो खेल रही है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अभी तो शेफाली वर्मा मैम यहाँ पर है नहीं, बट वो जब बैटिंग करती है तो उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या आता है उनके दिमाग में कि वो दे दनादन मारते रहती है? क्योंकि आप लोग उनके टीममेट्स हो, आप लोगों ने साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर करा है। Okay, we'll answer the question now. आपने 2-3 क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको चोट लग जाती है और आप उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो। बट ये स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ का एक हिस्सा है। और जब आप किसी भी स्पोर्ट्स में एडमिशन लेते हो या जाते हो तो आपका माइंड वैसे ही काम करता है या वैसे ही प्रिपेयर होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स पर आप एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो सकता है मैं यहाँ से चलते चलते गिर जाऊँ, उसमें मेरा कंट्रोल नहीं है ना। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो क्या कर सकती हूँ। चोट लग गई, अभी उसका मैं वापस जाके ठीक तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं उसकी अच्छी केयर करूँ, अच्छा रिहैब करूँ और जल्दी वापस आऊँ। तो हमेशा कोई भी एथलीट होता है उसका माइंडसेट हमेशा यही रहता है। और दूसरी चीज़ आपने शेफाली के बारे में पूछी, शायद वो दे दनादन मारती रहती है, उसका माइंडसेट क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब उसने क्रिकेट शुरू किया था तो उसको भी काफ़ी बोला गया था कि लड़की है क्या करेगी, तो उसने अपने बाल कटवा के छोटे करवा के खेलने जाती थी लड़कों के साथ। तो उसके फादर ने उसको वही सिखाया था कि तू लंबे लंबे छक्के मार। तो शायद उसका माइंडसेट वही है शुरू से कि कोई भी आ जाए कितना, क्योंकि उसने शुरुआत से बॉयज़ को खेला है तो उसको शायद वो पेस लगता ही नहीं है कि कुछ आ रही है। तो उसका माइंडसेट हमेशा यही है कि वो स्टार्टिंग में ही अपनी टीम को कितना बेनिफिट दे सकती है अपनी बैटिंग से। तो शायद उसका यही है कि मेरी रेंज में है तो मैं इसको बाहर ही पहुंचाऊंगी। तो वो माइंडसेट उसका बचपन से ही है, जब से उसने क्रिकेट शुरू किया। ये एक दिन में डेवलप नहीं होती है चीज़, ये माइंडसेट आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। तो उसने छोटे से वो डेवलप की है। मैं बताता हूँ आपको शेफाली का माइंडसेट क्या है। हरियाणा से है वो, मैं हरियाणा का लीगल एडवाइजर है 20 साल तक। तो रणबीर महेंद्रा जी बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे, उनका बर्थडे था। तो वीरेंद्र सहवाग, मैं और सुनील गावस्कर जी के बेटे, हम सब लोग उनका केक काट रहे थे। तो मैच चल रहा था, वो एक लड़का वहां से शोर मचा रहा था, पाँव निकाल जड़ में देगा ये। तो किसी ने कैसे बाहर भेजो लड़के को, वो लड़का नहीं, वो शेफाली थी 12 साल की। तो मैं उसके पास गया, किसने बोला बस ये लड़की है खेलती, मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुनो, करिए 1 मिनट, 1 मिनट, आगे पाँव निकाल जड़ में देगा ये। और उसने यॉर्क कर दी और वो एलबी डाउन करी, मैं कह रही थी आउट हो जाएगा, सुनता नहीं है। सो दैट वाज द माइंडसेट, द कॉन्फिडेंस ऑन हरसेल्फ जो उसको यहाँ तक लेके आया। और यही कॉन्फिडेंस इन सबका है कि 150 करोड़ में ये 15 लोगों में है, 10 करोड़ के बाद एक प्लेयर पैदा होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कभी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। वट एवर यू डू, वी आर विद यू, दिस शुड बी द लोगो। Right, sir. थैंक यू सर। Get the question from there. हेलो एवरीवन। मेरा सवाल है आपका ऑल चैंपियन से कि जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया को या मेंस क्रिकेट टीम हो या फिर वुमेन्स क्रिकेट टीम हो उसे एक पहाड़ जैसा देखते हैं, और जब आपने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था तो वो आपके लिए फाइनल था या फिर सेमीफाइनल के हिसाब से आपने उसे इमेज किया था? पहाड़ कौन देखता है, हम तो नहीं देखते। आपने अभी आपने देखे, लेकिन दर्शक जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा पहाड़ टीम की तरफ देखते हैं। शायद आपका माइंडसेट अब चेंज हो जाए और आप अभी देख लेना। Thank you. The little boy over there wants to ask. Okay. How many
hours should I practice every single day? Oh, so cute. How many hours should he practice every day? My name is Mahir. भूल गया, वापस बोलोगे क्या? How many hours should I practice every single day? आई थिंक जब तक आपका दिल ना कहे ना कि बस अब हो गया, तब तक आप प्रैक्टिस करो। फिर चाहो 2 घंटा हो या 1 घंटा हो, जब आपका दिल कहे कि अब हो गया, आधे घंटे बाद भी दिल करता है बहुत अच्छा किया है, 2 घंटे बाद भी करते हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आया। सो इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। Right, set. Well asked question. Okay, we'll give the mic to him. इसका बहुत देर से he is waiting to ask the question. My name is Yuvraj Singh. I am 10 years old. First of all, huge round of applause for Yuvraj Singh, 2011 champion. I want to ask, do you do cheat days Cheat days. for food? हम भी तो इंसान है यार, एक दिन तो चलता है। जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, तो आप अपनी बॉडी को ट्रीट दे सकते हो एक दिन। तो यस, रोज रोज तो नहीं, बट हाँ 1 महीने में आप एक बार अपनी बॉडी को ट्रीट कर सकते हो। Okay, thank you. Okay, sir has a question to ask. After that, we'll take a last question from this kid. मैडम एक क्वेश्चन हमारा भी है। Okay, क्वेश्चन के दौर में बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यहाँ टीम इंडिया के मैनेजर रहे श्याम शर्मा साहब से है कि 1983 और 2025 आपने दोनों दौर को देखा है और आप एक अच्छे क्रिकेटर रहे। वो ठीक है कि आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाए। आप अपने जीवन का थोड़ा सा सार बताएं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। इसे कहते हैं चीटिंग। सुनने आए प्लेयर्स को, ये मेरे दोस्त लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल बताता हूँ। वहाँ से किसी बिटिया ने पूछा था ना, कोई टीच करता था या उधर से किसी का जवाब क्वेश्चन आया था शायद, बोली कि मैं कैसे उसे डील करूँ। बोली जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया था 83 में, तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मैच था। मैं फिरोजशाह कोटला में गया था। तो फिरोजशाह कोटला बड़े ग्राउंड सा ही था, उधर पत्थर के स्लैब्स बने हुए थे, उस पर बैठे हम। बहुत गर्मी थी, नीचे न्यूज़पेपर रख के बैठे थे। तो हमारे साथ एक बच्चा होता था, उसके फादर वहाँ DDCA में थे। तो उसने कहा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो हमने कहा वहाँ कहाँ? कहता वो ड्रेसिंग रूम है ना, उसके ऊपर हमारा बॉक्स है, उसमें बैठूंगा। तो मैं कहा चल तू आज बैठ, कभी हम भी वहीं बैठेंगे। मैं फोकस था, बहुत फोकस्ड और लेजी था। हॉट वेदर नहीं खेलता था, और लेजी हो गए तो आप जिंदगी में क्रिकेट में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं एक मैच में 4-4, 5-5 विकेट लेता था, लेकिन जब गर्मी आती थी तो मैं रेस्ट करता था। इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अगर क्रिकेटर बनना है, डिसिप्लिन रखो, मेहनत कंटिन्यूस रखो, फोकस रखो। स्नेह जी ने जो कहा है ना, बिल्कुल वही। उधर से विराट को चुनो, इधर से इनमें से चुनो कि हमारे ये रोल मॉडल हैं। कितनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे वो आपको नहीं पता होगा। उन्होंने कहा ना पीछे पर्दे के पीछे। तो फोकस रहा मैं, मुझे पता था मुझे क्या करना है। और 2003 में जब मैं BCCI लीगल एडवाइजर बना, तो एंटायर प्रेसिडेंट बॉक्स वाज विद मी। और मैंने उसी दोस्त को बुलाया जिसको मैंने कहा था कि मैं वहाँ बैठूंगा, और उसको लेके गया। मैं कहा देख, मैं तुझे कहा था ना यहाँ बैठूंगा। तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस रहेंगे लाइफ में, तो आगे चलते रहो। अगर आप दोनों काम करोगे ना, कि ग्रेजुएशन भी करोगे और मैं 30 साल में क्रिकेट खेल लूँ या नहीं खेल लूँ, तो फिर जॉब भी ढूंढोगे, तो दोनों काम नहीं होंगे। क्रिकेट खेलो, स्लीप क्रिकेट, ईट क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट। क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट में डूब जाओ। 30 साल के बाद सारी जिंदगी है ऐश करने के लिए, उससे पहले कुछ मत देखो। मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली, मैं अभी ताजा मिला हूँ मेघना से, लेकिन आई एम सो इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। फिटनेस लेवल देख के, कॉन्फिडेंस देख के, से बातें सुन के। तो ऐसे ही आप आगे ढूंढते रहो अपने इंस्पिरेशन की, कौन आपकी इंस्पिरेशन है, और आगे चलते जाओ, फोकस रहो। बस गोल अपना रखो कि मुझे इंडिया खेलना है। हाँ, पेरेंट्स को भी बड़ा रोल अदा करना है।
जितनी माताएं बैठी है ना, मैं उनको कह रहा हूँ किट्टी पे ध्यान कम दे, बच्चों पे ध्यान जाएगा। क्योंकि आपका सेक्रीफाइस उनको लेके जाएगा। शुभमन गिल के फादर लगातार साथ घूमते थे उसके, हिम्मत सिंह के फादर ने कोई मैच नहीं छोड़ा, इतना अपना बिजनेस छोड़ के उसके साथ लगे रहते बच्चे के। तो पेरेंट्स का रोल भी बहुत है, मेहनत करो बच्चों के साथ, उनका नाम होगा तो आपके साथ भी फोटो खिंचाएंगे लोग फिर बाद में। Okay, next question is from that gentleman. हाय एवरीवन, हर्ष प्रजापति दिस साइड, एंड मेरा क्वेश्चन स्नेह दी से है। सबसे पहले दी आपके लिए एक लाइन, नहीं खाई ठोकरें अगर सफर में तो मंजिलों की अहमियत कैसे पहचानोगे। नहीं खाई ठोकरें अगर सफर में तो मंजिलों की अहमियत कैसे पहचानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे जानोगे, सही को कैसे जानोगे। ये लाइन मैंने स्नेह दी के लिए इसलिए बोली बिकॉज मैं उनकी जर्नी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। टेस्ट डेब्यू से पहले एक पर्सनल ट्रेजेडी होना, उसके बाद WPL में गुजरात की कैप्टन बनना, उसके बाद इंजरीज के चलते बाहर भी रहना, और सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट हम सभी फैंस के लिए था लास्ट ईयर ऑक्शन में अनसोल्ड जाना। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया कि उसके बाद आपने पलट कर ही नहीं देखा। आप एज अ रिप्लेसमेंट आए, IPL में RCB को ज्वाइन किया, उसके बाद WPL के स्क्वाड में आना, उसके बाद इस साल तो मुझे नहीं पता आप कितना लंबा जाने वाले हो, जो अभी ऑक्शन आने वाले हैं WPL के, सो वर्ल्ड कप जीतना। तो ये पूरी आपकी जो जर्नी रही है वो पूरी रोलर कोस्टर रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आपने अपना बॉलिंग एक्शन में भी काफी चेंजेस करे, आप मोर साइड ऑन आके अब आप बॉलिंग कर रहे हैं, सो क्या कहना चाहेंगे इस पे। I am really happy to see somebody knowing the intricacies of women players, match, form, how that player is bowling and all the records. Kudos to you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, वो आपने जो शायरी बोली उसके लिए भी। और आप अगर मेरी जर्नी को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद सब कुछ पता ही होगा फिर तो। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि रोलर कोस्टर ज़रूर रही है मेरी जितनी भी जर्नी रही है। जब से मैंने डेब्यू किया था 2014 में, मैंने इंडिया डेब्यू किया था, और बीच में इंजरी हुई मुझे 2016 में, जिसके कारण मुझे 5 साल बाहर रहना पड़ा टीम से। मैं बाहर तो थी लेकिन मेरा दिल वहीं पर था, और मैंने कभी भी हार नहीं मानी। और मेरे माइंड में हमेशा यही था, जिन पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, जब वुमेन्स क्रिकेट को कोई जानता नहीं था तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकती हूँ उस चीज़ को। तो मेरे माइंड में हमेशा यही था कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है आगे, तो मैं यहाँ तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने बहुत मेहनत करी, 5 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला मैंने, उसके बाद 4 साल, 1 साल मैं बहुत दूर रही क्रिकेट से। वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही वैसा फेज था कि जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो और उससे 1 साल दूर रहो तो कैसा फील होता है, वैसा ही मुझे भी फील हो रहा था। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्म किया, जिस वजह से मुझे 2021 में वापस इंडिया कॉल अप आया। और देखो, रोलर कोस्टर तो आते रहते हैं और उसमें मज़ा भी है, क्योंकि आप जब हमेशा ऊपर रहते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है कि नीचे की चीज़ें हैंडल कैसे करनी है। लेकिन जब आप नीचे से उठते हो और ऊपर जाते हो ना तो आपको सारी सिचुएशन हैंडल करना आता है। तो मेरा सबसे जो एक अच्छी चीज़ है वो यही है कि मैं हमेशा जब नीचे गिरती हूँ तो शायद मैं उस चीज़ को और अच्छे से संभाल के ऊपर जाती हूँ। तो रोलर कोस्टर भी ज़रूरी है लाइफ में। ऊपर रहते हैं तो शायद लोग नीचे का टेस्ट भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ से हमने स्टार्ट किया चीज़ें, या वो कैसा टेस्ट करता है। बट अगर नीचे रहोगे और वहीं से टेस्ट लोगे ऊपर का भी, तो शायद और ऊपर चले जाओगे। थैंक यू सो मच दी। एक छोटा सा क्वेश्चन वैष्णवी जी से भी, आपने डेब्यू में हैट्रिक ली और 5 रन देकर 5 विकेट, वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड। चंबल से लेकर, एक मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल एरिया पड़ता है, वहां से यहाँ तक का सफर को कैसे देखते हैं, और अभी तो पूरी जर्नी बाकी है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़, वो जो विकेट लिया मैंने, हैट्रिक लिया, उसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, खासकर मेरे पेरेंट्स की। अभी बाय द वे वो यहाँ पे आए हुए हैं। सो big round of applause for the support systems and the backbone of Vaishnavi.
तो मेरे मम्मी पापा हम लोग एक गांव से बिलोंग करते थे। मम्मी पापा ने ग्वालियर में आए, अपना फैमिली वसाई सब डिस्ट्रिक्ट जालौन यूपी। सो वहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं हम लोग, वहाँ से लड़कियों को अलाउड नहीं करते थे कि कहाँ खेलेगी क्रिकेट, वहाँ पे लड़के होंगे, कुछ होगा, मत जाने दो। मतलब जो होते हैं ना रिश्तेदार की, क्यों करना है, छोटी बच्ची है, पढ़ाओ लिखाओ, भेजो, शादी करवा दो। तो मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया, हमारी बच्ची है, हम जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो पूरा सपोर्ट है ना, जैसे रिलेटिव से लड़के, समाज से लड़के, इवन पापा ने अपनी जॉब भी छोड़ी थी मेरे चक्कर में कि मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए, उसको खिलाने के लिए मैं ये जॉब क्विट करता हूँ, ऐसा करके। वहाँ से जहाँ से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे चीज़ें पता चली धीरे धीरे। और मतलब जब भी मैं ग्राउंड जाती हूँ, मेरे मम्मी पापा में से कोई भी एक खड़ा रहता है मेरे लिए। जब तक मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हूँ, पापा रहेंगे, अगर पापा अवेलेबल नहीं है मम्मी रहेंगी, अगर मम्मी नहीं रहते तो भैया रहेंगे। जो फैमिली का सपोर्ट होता है ना, उससे मुझे इतनी इंस्पिरेशनल मिली कि अब मुझे इनके लिए करना है, मेरे को खुद के लिए नहीं, अब मुझे इनके लिए करना है, इनके नाम के लिए करना है। तो हर बार जब भी मैं कभी भी गेम खेलती हूँ ना, तो मुझे इनसे ऐसे मोटिवेट बनता है कि नहीं, अभी तो जर्नी बहुत ज़्यादा है, इनको तो अभी बहुत कुछ दिखाना भी है, इन्हें जो मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है। दूसरी चीज़, ये मेरे कोच भी हैं। अब पहले मेरे दूसरे कोच थे, इन्हें देख देख के लर्न करा, अब ये मुझे कोचिंग देते। जैसे बताया था ना कि वर्ल्ड कप के बाद आई थी तो थोड़े इमोशनल हुए कि बेटा अच्छा करा, सब बढ़िया था। फिर बोलते हैं कि बेटा यहाँ से मन नहीं भरना है, अपन को अभी और आगे जाना है, अभी और खेलना है, तो यहाँ से अब नई छलांग मारो तुम, अब ये सब भूल जाओ, हो गया, अच्छी मेमोरीज बनाओ, अब तुम्हें आगे के लिए तैयारी करनी है। तो उन्होंने कभी मेरे को ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं लेने दिया कि नहीं नहीं अभी तो तुम्हें और करना है, ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। और जब वो फर्स्ट डे वर्ल्ड कप का रहता, मेरे को प्लेइंग नहीं मिली थी फर्स्ट मैच में, तो पापा बोलते हैं बेटा दुखी नहीं होना, जब तेरा दिन आएगा तू उस दिन हल्ला मचा देगी, तू रिकॉर्ड होगी। जो मेरे मम्मी पापा का दिन है वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। सो थैंक यू आप लोगों के लिए, और इनकी कारण मैं अभी तक ऐसा कर पाई। और ये जो विकेट वाला था बहुत अच्छा था वो, मतलब मैंने उस समय भगवान को थैंक यू बोला और मम्मी पापा को बोला कि मैंने अपने आप ये अगर छोड़ भी दिया था कि मैं अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाई, उन लोगों ने मेरे लिए बिलीव नहीं छोड़ा। सो सबसे ज़्यादा प्लेयर के लिए ये चीज़ अच्छी रहती है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली सपोर्ट करे आपके लिए, तो बच्चा कहीं पे भी जा सकता है, कभी भी हार नहीं मान सकता। सो प्लीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों पर भरोसा करो, उनको आज़ादी दो, वो आपका नाम ज़रूर रोशन करेंगे। थैंक यू। Thank you so much everybody for giving your time and I know सबके बहुत सारे questions होंगे और ये questions एक सवाल हमारा समय के अभाव के चक्कर में I am really sorry but मैं जो इन लोगों से इंस्पायर हुई हूँ, और रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पोयम है, वो ये कहते हैं, और शायद ये आप सबको इंस्पायर कर पाए कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वो मृत हुआ, जो वृंत से झड़कर कुसुम। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। तो संघर्ष करना मत छोड़िए, प्लीज डू नॉट गिव अप, प्लीज डू नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड। एंड आप में से कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो 20 साल की उम्र में कोई भी गेम पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो 6 साल की उम्र में कोई भी और प्रोफेशन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, जो भी चीज़ आप सोच लेना उसको ठान ले और उसकी तरफ संघर्ष करें, वो एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Divya ma'am, for hosting this panel discussion so beautifully. And thank you everyone for asking so wonderful questions. Event को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. And now I would like to invite on stage Mr. Rohit Verma, founder of One Dice. Everyone, please put your hands together. Thank you so much. How are you all? ऑब्वियसली होना भी चाहिए। ये माइक मेरे हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया गया क्योंकि मुझे वैसे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, पर ये मंच बड़े अच्छे तरीके से जानता है मुझे कैसा बोलना आता है। somebody asked me कि मेरे को बहुत सारे लोग भी बैक स्टेज मिल रहे थे, मैं बाहर था तो भी मिल रहे थे। they were asking me कि what was the vision behind One Dice basically। अभी किसी ने हमें थैंक्स भी किया, थैंक यू सो मच फॉर थैंकिंग अस। मैं एक छोटा सा विजन बताना चाहूँगा। what happened basically
वी हैव अनदर ब्रांड, उस ब्रांड के लिए यू नो स्नेह और मेघना मैम केम टू आवर ऑफिस फॉर अ पॉडकास्ट बेसिकली। हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे, पॉडकास्ट करते करते मैं क्या करता हूँ हमेशा ना, मैं आपको बहुत फनी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, समझिएगा कि एक ब्रांड कैसे बिल्टअप होता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें लोग बुली करते हैं, हमारे साथ ये होता है वैसा होता है, मैं उसका एक बहुत अच्छा आंसर आपको देता हूँ। तो दे केम ओवर देयर। तो मेरा क्या है, मैं हमेशा जब भी पॉडकास्ट चलता है ना सर, तो ना मैं साइड में बैठ के सुनता रहता हूँ और मैं बीच में से हिलेरियस क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ला रहा था, तो मेरे हमेशा क्वेश्चंस ना कंट्रोवर्शियल ही होते हैं, क्योंकि जब तक धुआं नहीं उठेगा, आग नहीं लगेगी, तो मजा कैसे आएगा जीवन के अंदर। तो आई वाज लाइक कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, करते करते दिव्या मैम वाज अकम्पनिंग स्नेह मैम एंड मेघना मैम ओवर देयर। तो जब दिव्या मैम से मैं मिला तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं खतरनाक सा। तो मेरा दिव्या मैम का डिस्कशन हो, मैं आपको ये एक स्टोरी समझा रहा हूँ कि समझिएगा कि कैसे किसी चीज की बिगिनिंग होती है बेसिकली। तो मी एंड दिव्या मैम मेट आज से कुछ महीने पहले। जब हम मिले तो हमने अपना एक यू नो डिस्कशन करना स्टार्ट करा। ड्यूरिंग दैट डिस्कशन वी यू नो अंडरस्टूड वन थिंग कि आज इंडिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट कौन सा है? देखा, आपकी जुबान पे भी क्रिकेट आ गया ना। हम कभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट नेशन नहीं कहलाते, हम हमेशा क्रिकेट ग्रोइंग नेशन कहलाते हैं। मैं यहाँ पे यू नो क्रिकेट का सपोर्टर डेफिनेटली बहुत बड़ा हूँ। अभी यू नो दिव्या मैम एक लाइन बोल रही थी, मेरे को सुन के बड़ा दर्द हुआ, लेकिन बाद में खुशी हो गई। दिव्या मैम ने कहा कि 19 नवंबर जो कल का दिन था, आज से 2 साल पहले मैं बहुत दर्द हुआ था। भाई मुझसे ज्यादा दर्द नहीं होगा किसी को भी, मेरा बर्थडे था उस दिन। तो मुझे पता वो कैसा गया था। मेरे घर वाले सब कह रहे थे यू नो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बस लाइक रात को करेंगे, रात को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ढंग से, और वो कितना अच्छा सेलिब्रेटर है सब जानते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे बोलते बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सॉरी मैम, सॉरी टू ऑल ऑफ यू। मैं भी आधा ही फैन था भाई, मैं भी आधा ही फैन था। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था, पर मैं आधा ही फैन था। बट व्हेन आई मेट दीज टू लेडीज ना, स्नेह एंड मेघना, मैं बोलना चाहूंगा मेरे को जब इनके स्ट्रगल के बारे में पता चला ना, मतलब मेरा मेघना मैम से बहुत सारा डिस्कशन होते रहता है। अभी भी मेघना मैम का हैंड फ्रैक्चर, अगर किसी को नहीं पता फिर भी वो यहाँ बैठ के इतना अच्छा स्पीच दे पा रही है। यू नो व्हेन आई मेट देम ना, मुझे एक चीज समझ में आई कि यार इनका जो स्ट्रगल है ना वो कोहली से ज्यादा ही है, क्योंकि कोहली के सपोर्टर भी ज्यादा है, तो स्ट्रगल ऑब्वियसली इनका ज्यादा है देखा जाए। बट व्हेन आई मेट देम वी हैड अ डिस्कशन, मी, दिव्या, प्रमोद, शुभम, वी ऑल हैड अ डिस्कशन कि यार कुछ खतरनाक करते हैं। और आज ये इवेंट कराने का, ये फैन मीट ऑर्गेनाइज कराने का, मैं आपको मुद्दा बताता हूँ क्या है। पता है क्या, यहाँ पे 3 जनरेशंस बैठी है। मेरे वर्ड्स को माइंड मत कीजिएगा। 1 जनरेशन स्नेह एंड मेघना, ऑलरेडी प्लेड सो मच क्रिकेट बेसिकली। उसके नेक्स्ट जनरेशन वैष्णवी एंड प्रेमा सिटिंग देयर, तनुजा सिटिंग हियर, और उसके नेक्स्ट जनरेशन आप में से बहुत छोटे छोटे 7-8 साल के 9 साल के बच्चे बैठे हो। तो आप देखो इसी हॉल के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम का प्रेजेंट, अपकमिंग प्रेजेंट और आने वाला प्रेजेंट बैठा हुआ है। और पता क्या होता है कि अभी एवरीबॉडी इज आस्किंग कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। मेरा हर एक से बहुत अलग अलग तरीके से डिस्कशन हुआ। व्हेन आई मेट स्नेह, मुझे स्नेह मैम से बहुत डर लगता है। राणा जी माफ नहीं करेगी। हाँ, राणा जी हमें माफ करना, यू नो। नहीं सर, मैं आप ही पे आ रहा हूँ, मैं आप ही पे आ रहा हूँ। यू नो खतरनाक भी नहीं हूँ मैं रोहित जी जो आप मुझसे डरे। हम लगता है कभी भी गलतियां हो जाती है। गलतियों पे आने लगना चाहिए। हाँ, तो यू नो आई हैड अ डिस्कशन विद स्नेह मैम, मेघना मैम, मेरा काफी डिस्कशन होते रहता है। बट व्हेन आई हैड अ वर्ड विद वैष्णवी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग विद वैष्णवी, पर मैं वैष्णवी को पिछले कुछ काफी महीनों से जानता हूँ। दिस इज कॉल्ड अ ट्रस्ट लेवल। वी हैड अ कन्वर्सेशन विद हर। सोचो जूम पे कन्वर्सेशन हुआ, वैष्णवी वांट टू मैनेज यू, बात होना शुरू हुआ। मतलब मेरे को आज इतना प्राउड फील हो रहा है। अभी सब क्वेश्चन पूछ रहे थे और वैष्णवी ने आंसर दिया कि आपने कब से खेलना शुरू किया था। सब कहते बचपन से। वैष्णवी का बचपन तो अभी चल रहा है, शी इज जस्ट 19 एंड शी इज अ वर्ल्ड चैंपियन। At the age of 19 she is a world champion. Similarly, when I had a discussion with Prema was here in Delhi few months back to play against Australia. मेरा डिस्कशन में मुझे समझ में आया कितनी इंटेलेक्चुअल है ये लड़की और कितने अच्छे तरीके से ये मतलब क्रिकेट की क्या खतरनाक नॉलेज रखती है। आई मेट तनुजा मैम इन चंडीगढ़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब उनसे डिस्कशन हुआ तो एक ऐसा डिस्कशन था कि बड़ा स्लोली समझ में आना कि बात करनी क्या। जब बात होनी शुरू हुई और हमने शायद माइंडसेट के ऊपर बात किया था, दैट वाज क्लासी। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम जितने भी लोगों को प्रेस करते हैं ना, चाहे हमारी विमेंस क्रिकेट हो चाहे हमारा मेंस क्रिकेट हो, पता है ये सारे हमारे हीरोज हैं। ये सुनो, अपकमिंग हीरोज है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के। यू नो ये यू वर आस्किंग समथिंग, यू आर जस्ट 17 राइट नाउ। पर पता क्या होता है, पर्दे के पीछे के ना बहुत सारे हीरोज होते हैं। एज वैष्णवी से, वैष्णवी के पेरेंट्स आर हियर। सिमिलरली यू नो आज वी आर प्रिविलेज कि श्याम सर इज हियर। ये भी मतलब
अगर आज आप देखेंगे क्रिकेट को ग्रो कराने में, क्रिकेट को बड़ा बनाने में श्याम सर का भी बैकएंड से बहुत बड़ा हाथ है. सो हैव अ ह्यूज अनुभव फॉर श्याम सर. जैसे वो जनरेशन पे आ रहा था डेफिनेटली. मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, इस मीट को ऑर्गेनाइज कराने का सिर्फ एक ही मोटो है कि आप अपने हीरो से मिल सके और आने वाले वक्त में खुद एक हीरो बन सके. ये स्पेशली सारे के सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, उसी डेफिनेटली मैं बस इतना सा आपको कहना चाहूंगा. अभी ऑब्वियसली आफ्टर रैपिंग अप दिस ऑल सच थिंग्स, जितने भी छोटे बच्चे हैं, हमने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट ऑर्गेनाइज किया है. वी हैव अ स्मॉल बैग जिस पे आप अपने हीरोज के ऑटोग्राफ ले सकते हो, घर पे एज अ मेमोरी ले जा सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट माय टीम, जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको बैग जरूर पहुंचा दीजिएगा. मैं बस इतना सा आखिर में कहना चाहूंगा, वन डाइस इज हियर. व्हाई वन डाइस इज हियर? वन डाइस इज हियर टू प्रमोट स्पोर्ट. आज इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे वन डाइस है. और मैं इस बात का आपको वादा करता हूँ, दिस वाज द फर्स्ट फैन मीट. वी आर कमिंग अप विद अ वेरी बिग कॉन्क्लेव वेरी सुपर सून विद द नेक्स्ट 3 months. सो गेट रेडी फॉर दैट. उस कॉन्क्लेव के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच टू तनुजा मैम, वैष्णवी मैम. देखो मेरे मुंह से ना मैम निकल रहा है, जबकि वैष्णवी इज हाफ ऑफ माय एज. वैष्णवी इज हाफ ऑफ माय एज. बताओ रोहित जी हाफ ही है. बस मैं थोड़ा सा 19-20 का है. She is 19, I am 38. मैं कल ही 38 years का हुआ हूँ. She is half of my age. Thank you so much. Happy birthday. Thank you so much. Thank you so much. मेरे मुंह से तब भी मैम निकलते हैं. मतलब they all are younger to me. Why मैम? मेरे को एक बार पूछा भी था किसी ने कि आप इनको मैम क्यों बोलते हो? भाई मैं अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर के लिए कुछ कर रहा हूँ. इन्होंने देश के लिए कुछ कर दिखाया, तो मैम को अपना निकले आया. तो दिस इज द कंसर्न. थैंक यू सो मच तनुजा मैम, वैष्णवी मैम, स्नेह मैम, श्याम सर, मेघना मैम, Prema ma'am, and of course Divya ma'am. So I have a huge honor for all these people. And मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे बहुत सारे एक्चुअली ना मेरा नंबर लीक हो गया. मेरे साथ दिक्कत ये होगी, पता नहीं somebody leaked my number. मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स आ रहे हैं और रिक्वेस्ट पीछे आके भी आ रहे हैं कि आप सब शायद एक फोटोग्राफ क्लिक कराना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं. डेफिनेटली विल गेट दिस चांस फॉर श्योर. बट मैं इतना सा कहूंगा कि यार प्लीज थोड़ा एक डेकोरम के साथ हम चीज करेंगे. डेफिनेटली मैं सबसे पहले तो छोटे बच्चों से चाहूंगा, सिर्फ उन्हीं स्मॉल किड्स. अभी रुक जाओ यार. बिल्कुल ऑल द किड्स फ्रॉम दैट एकेडमी बेसिकली मैं सबसे चाहूंगा कि डेफिनेटली वो यहाँ पर आए एंड दे कैन मीट देयर हीरोज, कैन हैव ऑटोग्राफ, कैन हैव अ फोटोग्राफ. बट हम स्लोली सब चीजों को करेंगे. एंड आई नो मीडिया भी बहुत देर से वेट कर रहा है वहां पर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल. डेफिनेटली विल हैव अ Q&As वेरी सुपर सून. बस ये थोड़ा सा इसको जल्दी रैप अप करते हैं, फॉर श्योर करेंगे. ओवर टू यू दिव्या. थैंक यू सो मच. श्याम सर लाइक टू से. मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी विमेन क्रिकेट का मैच हो, आप अपने पूरे क्लब के लोग साथ, अपने नेबर्स को, अपने पड़ोसियों को, सबको कहें कि स्टेडियम जरूर आके मैच देखें. ये जो आपका प्यार है ना, ये थोड़ी दिनों में गायब नहीं होना चाहिए. ये आपका प्यार कंटिन्यूस 20 साल तक रहना चाहिए, जब तक ये सब लोग ये रिटायरमेंट नहीं ले, जब तक आपका प्यार बना रहना चाहिए. क्योंकि उन्होंने कहा ना दिनकर की बात, वो मुझे उसी पे याद आ गया. किसी ने कहा था कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, सतलुज का मुहाना बदलेगा, रावी का रेहाना बदलेगा, तू खुद तो बदल, तू खुद तो बदल, तो ये देख जमाना बदलेगा. तो आज टाइम ये है कि हमें खुद को बदलना है कि विमेन क्रिकेट को कैसे सपोर्ट करना है और कैसे हर मैच देखने जाना है. बस यही रिक्वेस्ट आप सबसे. थैंक यू. आप हमें क्रिकेट चलाने दोगे? नहीं. इन्होंने किसी दिन पीट दिया ना तो आधी ब्रांड रह जाएगी हमारी. भाई आई रिक्वेस्ट पहले मेन सिंह को क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत कर आए, फिर कंपटीशन करेंगे. Thank you so much. It was my honor to host all of you and all of you. Thank you so much.